ممبر رسول پہ تشریف فرما شہزادہ صدر شریعت حضور محدث کبیر اور دیگر ارباب ملت ترجمانان مسلکی اعلیٰ حضرت، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ احمدک یا اللہ واصلی واسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ میرے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت حضور سرکار تاج شریعت بدر طریقت نور اللہ مرقدہ کی پاکیزہ جو محفل قل ہے اس میں حاضر آئے ہیں اور برکتیں لوٹنے کے لیے اپنے خالی دامنوں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ حضرت علامہ مفتی گلزار صاحب قبلہ نے میرا نام تو بولا لیکن میرا عنوان نہیں بتایا، میں بتائے دیتا ہوں۔ میرا عنوان ہے فتاوی تاج الشریعہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمان۔ سبحان اللہ۔ مجھے تھوڑی دیر اسی پر گفتگو کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں باواز بلند سارے لوگ مکمل توجہ کے ساتھ، چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ، ومن صلی علیہ مئہ کتب اللہ لہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ تبارک وتعالی یوم القیامۃ مع الشہداء۔ جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجا کرتا ہے۔ سب کی توجہ چاہوں گا، جو 10 بار بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار درود بھیجتا ہے۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آگے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے گا قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھوائے گا براءۃ من النفاق، یہ آنے والا کوئی غدار نہیں، مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آوازیں بلند ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے۔ سبحان۔ سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے یہی تو کہا۔ کیا کہا؟ بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا، بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا۔ ہمیں سرکار تاج الشریعہ نے اسی دربار سے جوڑا ہے جس دربار سے سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں جوڑا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 10 بار 100 بار درود پڑھو گے، یہاں لکھا ہوگا براءۃ من النفاق۔ جیل سے جب کوئی قیدی چھوڑا جاتا ہے اس کے ٹھپا لگا دیا جاتا ہے پیٹھ پر، تاکہ دیکھنے والا کانسٹیبل سمجھ لے کہ یہ بھاگ کر نہیں جا رہا ہے، سزا کاٹ کر کے جا رہا ہے، یا پھر کسی کے عفو درگزر پہ جا رہا ہے۔ بہرحال براءۃ من النفاق لکھ دیا جائے گا، آنے والا نبی کا وفادار آ رہا ہے۔ اور دوسرا ٹکڑا جو حدیث کا ہے وبراءۃ من النار، اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا بلکہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے شعر اٹھاتا ہوں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور بڑا انعام یہ ہے کہ شہید کوئی آسانی سے نہیں بنتا، گردن کٹانا پڑتی ہے تب شہادت کا جام ملتا ہے، مگر قربان جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عطا پر۔ سرکار فرماتے اگر کوئی 100 بار درود پڑھنے کی عادت بنا لے گا، اسکنہ اللہ تبارک و تعالی یوم القیامت مع الشہداء، قیامت کے دن اللہ تعالی جنت میں اس کو شہیدوں کے ساتھ ٹھکانہ عطا فرما دے گا۔
बस मैंने हदीस पढ़ दी, अब आप इसकी हकीकत हदीस की रोशनी में कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम को देखते रहे, कभी काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ दरूद, इसकी हकीकत तो समझते रहे, कभी ये पढ़ते रहे हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। मसला क्लियर हो जाएगा। उन्वान है फतावा ताजुश शरिया, मसल के आला हजरत की तर्जमान। मैं एक गोशा ले रहा हूं अपने पीर का, और अपने पीर की जिंदगी का एक गोशा मैंने उठाया है, वरना आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ताजुश शरिया की शख्सियत इतनी अजीम है। खाली पीर का नाम ताजुश शरिया नहीं, आला हजरत के पोते का नाम ताजुश शरिया नहीं, मुफ्ती आजम के नवासे का नाम ताजुश शरिया नहीं, ये निस्बतें अपनी जगह है। मगर आओ ताजुश शरिया को एज अ राइटर देखते हैं, एक मुसन्निफ की हैसियत से देखते हैं। एक तालिबे इल्म खड़े होकर कहे, मौलाना ये बताए मैं उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट सीखना चाहता हूँ, किसको पढ़ूं? मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था एक मदरसे के अंदर, मैंने एक उस्ताद से सवाल किया, मुझे अरबी का उर्दू में तर्जमा करना सीखना है, किसको पढ़ा जाए? दौरे हाजिर में कौन ऐसा राइटर है? उन्होंने कई सारे नाम लिए, उसमें हुजूर ताजुश शरिया का भी नाम लिया। आप कहेंगे कौन सी किताब का तर्जमा किया है? वक्त मुख्तसर है, सिर्फ 2 किताबों का नाम बताता हूँ। अल मुअतक़दुल मुंतक़द को पढ़े, उसका तर्जमा सरकार ताजुश शरिया ने किया है। अस्सुलालुल अलका मिन बहरे शफ़क़तिल अतका का मुताला करे, ऐसा लगता है कि जैसे अपने वक्त का एक जबरदस्त माहिर मुतरजिम बैठा हुआ है। एक बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा हजरत ये तो अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट की बात है, अनुवाद की बात है, मैं अरबी से उर्दू में सीखना चाहता हूँ, यानी उर्दू से अरबी करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ ऐसे सेंटेंसेस मिले, ऐसे जुमले मिले जिसकी अरबी को देखकर अरब भी अश अश करते नजर आए। हालांकि मेरे पीर की अरबी पर आज से 2018 की बात बताता हूँ, सरकार मदीने करीम अलैहिस सरकारे दो आलम मदीने शरीफ में मुझे करम फरमाते और बुलाते हैं। हाजिरी दी गई तो एक साहब ने मुझे बताया, हुजूर ताजुश शरिया रमजान में यहाँ आते थे, लोग समझते थे सिर्फ हाजिरी के लिए जा रहे हैं, मगर यहाँ के बड़े बड़े मशाइख अरब मशाइख इंतजार करते थे कब ताजुश शरिया आएंगे, कब हदीस का उलझा हुआ मसला सुलझाएंगे, कब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का दीवाना आकर हमें हदीस का इल्म देगा। और इतना ही नहीं, हुजूर ताजुश शरिया के अरबी अशार को सुनने के बाद वहां के अरब ने कहा था, कसम खुदा की अख्तर रजा खान, तुम्हारी अरबी को सुनकर मुस्तफा के सहाबा की अरबी याद आती है, दौरे मुस्तफा की अरबी याद आती है। ये हुजूर ताजुश शरिया है। एक तालिबे इल्म कहने लगा मैं उर्दू से अरबी सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने पीर का वो तर्जमा पढ़ ले जो कभी अलहादिल काफ की शक्ल में किया है, कहीं सुबहान शुब्बू की शक्ल में किया है। आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु का रिसाला है, लेकिन तर्जमा उर्दू किताब है, तर्जमा आला हजरत कर रहे हैं। कभी अलहादिल काफ का ताजुश शरिया कर रहे हैं, कभी अलहादिल काफ का तर्जमा करते हैं, कभी आप इसके अलावा सुबहान शुब्बू का तर्जमा करते हैं, बरकातुल इमदाद का तर्जमा करते हैं, अताइल कदीर फी हुक्म तस्वीर का तर्जमा करते हैं, बल्कि फतावे रज़विया शरीफ की पूरी पहली जिल्द का तर्जमा मेरे पीर ने अरबी में करके दिखाया है। और आलम क्या था, उर्दू से अरबी से उर्दू तर्जमा कराए या उर्दू से अरबी तर्जमा कराए। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में कभी आकर हुजूर सदरुश शरिया ने कहा था, हुजूर कुरान का तर्जमा करा दिया जाए। कोई डिक्शनरी नहीं होती थी, कोई लुगत नहीं होती थी, आला हजरत तर्जमा कराते थे। उसके बाद वही सदका आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया को भी मिला है। सफर प्लेन से कर रहे हैं, वहां भी तर्जमा कराया जा रहा है। किसी के यहाँ तबलीग के लिए गए हैं, वहां भी तर्जमा कराया जा रहा है। एक तालिबे इल्म कहने लगा हजरत 2 गोशे बयान कर दिए, जरा ये तो बताए मैं हदीस सीखना चाहता हूँ। मैं कहूंगा मनहतुल बारी फी हल्ले सहीह बुखारी पढ़ ले, ये मेरे पीर के पढ़ाए हुए असबाक है जिनको जमा करके मंजर आम पर ला दिया गया है। अगर कोई कहे हजरत मुझे बुखारी शरीफ पर, मुझे हदीस की किताबों पे तालीक और तबसरा लिखना है, कैसे सीखो? मैं कहूंगा ताजुश शरिया की तालीकात बुखारी का मुताला कर ले। अगर आप हजरात मेरी बात पर तवज्जो कर रहे हैं तो एक बार जरा मोहब्बत से बोलिए तो सही सुभान अल्लाह। सरकार ताजुश शरिया की किस किस जात को देखोगे? एक कहता है मुझे अरबी में अशार लिखना है, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं कहूंगा नगमाती अख्तर का मुताला कर ले। एक कहता है उर्दू में शायरी सीखना चाहता हूँ, मैं कहूंगा सफीना बख्शिश कर ले, सफीना बख्शिश का मुताला कर ले। कितनी चहते हैं। एक स्टूडेंट इंग्लिश का खड़ा हुआ, कहने लगा मुझे इंग्लिश
लिटरेचर चाहिए, और मुझे दीनियात को, इस्लामियात को किस तरह इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह तर्जमा किया जाता है, मुझे पढ़ना है। तो मैं कहूंगा सरकार ताजुश शरिया का जो फतावा अफ्रीका है, अफ्रीका का जो फतावा आपने इंग्लिश जबान में दिया था, उसका तर्जमा कर। अब मैं आमदम बरसरे मतलब, ये तो एक गोशा नहीं, अपने पीर की जिंदगी के मैंने मुख्तसर गोशे जिक्र किए हैं, वरना खुलफा की जमात देखो, उनके अंदर तसल्लुक देखो, दीनदारी देखो। 7 बिलियन मुरीद का, 7 बिलियन मुरीद रखने वाला अगर दौरे हाजिर में कोई पीर नजर आता है, उसी को जमाना ताजुश शरिया अख्तर रजा खान कहता है। ये सरकार ताजुश शरिया है। इदारा देखिए, मदरसा कायम किया, दारुल इफ्ता को चलाया। एक ऐसा लगता है कि मेरा पीर तने तनहा नहीं, बल्कि चलता था तो अंजुमन चलती थी, चलता था लाइब्रेरी चलती थी, चलता था मदरसा चलता था, चलता था इदारा चलता था। आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं कहूंगा मिशकात शरीफ का मुताला कर ले। सरकार इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इकराम की बज़्म सजी है, सरकार ताजुश शरिया कैसे फकी है, और कयामत के दिन आएंगे तो शख्सियत क्या होगी, आपका रौब क्या होगा, अल्लाह आपको फजलो कमाल कैसा अता फरमाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने सहाबा इकराम से, मन अजवदु जूदा, ए मेरे यारो बताओ तो सही सबसे बड़ा सखी कौन है? तो नुज़ूल वही का सिलसिला जारी था, सहाबा इकराम खामोश हो जाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह अजवदु जूदा, सबसे बड़ा सखी अल्लाह ताला है। उसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना अजवदु बनी आदम, उसके बाद मैं बनी आदम में सबसे बड़ा सखी हूँ। उसके बाद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इल्म वालों की कदर जानो, जो उलमा इकराम मसलकी आला हजरत के पाबंद है, उनके सीने पर भी तवज्जो दो, उनकी साथ पर भी तवज्जो दो। मुझे वक्त है तो इसलिए बोल रहा हूँ। आला हजरत की किताब मकाले उरफा बेअज़ाज़ शरअ व उलमा के अंदर आला हजरत ने मीज़ानुश शरीयतुल कुबरा इमाम अब्दुल वहाब शरानी के हवाले से लिखा, इमदादु क़ल्बिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ले जमीए कुलूबे उलमाए उम्मतिही। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के उलमा के लिए उन्होंने फरमाया कि जो उलमाए हक होते हैं उनके सीने को मदद किसी दुनियादार के सीने से नहीं मिलती है, मदीने के ताजदार से के सीने से मिला करती है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों आगे वो लिखते हैं मत्तक़दा मिस्बाहु आलिमिन इल्ला मिन मिशकाती कल्बि नूरी कल्बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया किसी भी आलिम का जो चरागे इल्म है वो रोशन नहीं होता, होता वही है, उसी वक्त होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सलामत रखे आप। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा का आपने पूरी तरीके से मजहर पेश कर दिया, मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह। सरकार ताजे शरीयत नव्वर अल्लाहु मरकदहू की शख्सियत देखें। सरकार एक हदीस में इरशाद फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहमिलु हाज़ल इल्मा मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु यल्फून तहरीफल गालीन। और फरमाए व इंतिहाल मुब्तलीन व तावील जाहिलीन। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस इल्म दीन को अच्छे जानशी, अच्छे असलाफ से लिया करते हैं। पहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, कुछ तवज्जो हो जाए तो मेरे लिए करम नवाजी होगी। क्या फरमाया? इस इल्म को अच्छे जानशी, मुनसिफ जानशी अपने आका अपने पेशवाओं से लिया करते हैं। काम क्या करते हैं? बरेली शरीफ क्या कर रहा है? उनके मुंह पर एक तमाचा है। मैं इस हदीस को पढ़ रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। जो ये कहते हैं छोटी छोटी बातों पर बरेली क्या कर रहा है, मैं कहूंगा देख हदीस पाक में हमारा मनसब का बयान किया गया, बरेली शरीफ का मनसब क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। सरकार फरमाते हैं मुनसिफ लोग, इंसाफ पर जानशी जो होते हैं वो अपने अपने अच्छे पेशवाओं से इल्म लेते हैं, और लेने के बाद करते क्या है, यनफूना तहरीफल गालीन, जो खुलू करने वाले हैं, इस्लाम में तब्दीलियां पैदा कर रहे हैं, कुछ माने गलत बयान कर रहे हैं, ये आके उनके चेहरे से नकाब उठा दिया करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो बातिल परस्त झूठे लोग हैं उनके झूठ से पर्दा चाक कर दिया करते हैं। इसी तरीके से जो झूठी तावीलें पेश कर रहे हैं उन जाहिलों की तावीलों को दूर कर दिया करते हैं। आज से आप तकरीरें सुन रहे हैं, बताओ तो सही, तकरीबन 200 साल गुजर गए हैं। इन 200 साल के अंदर बरेली शरीफ ने कभी तुम्हें मसलक से हटाया है, कभी
मजहब से हटाया है। यह मजहब ही तो तुम्हारी बुनियाद है, यही मजहब तुम्हारी आखिरत का सामान है। सरकार ताजुश्शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू को फैज कैसे मिला, किससे मिला? आप देखिए, अल्लामा रजा अली खां का फैज चला, अल्लामा नकी अली खां को मिला। अल्लामा नकी अली खां का फैज चला, 21 उलूम आला हजरत ने अपने वालिद अल्लामा नकी अली खां से हासिल किए, उनका फैज आया। आला हजरत का फैज मुफ्ती आजम को मिला, हुज्जतुल इस्लाम को मिला। मुफ्ती आजम का फैज सरकार ताजुश्शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू को मिला है। अब आइए, मैं ज्यादा मिसालें नहीं, दो चंद मिसालें जिक्र करके गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। फतावे रज़विया उठाइए। एक मसला आता है, मसला यह है कि सरकार को कितना इल्म गैब दिया गया है। सरकार अलैहिस्सलाम को अगर कोई चौपाओं की तरह कहे उनके इल्म गैब को माअज़ल्लाह, उसके बारे में क्या होगा? आप फतावे रज़विया का मुताला करें, आला हजरत को पढ़े, तब आपको पता चलेगा। आला हजरत ने इल्म गैब पर एक किताब नहीं, कई सारी किताबें लिखी है। कभी कलम उठता है तो दौलतुल मक्किया मारे से वजूद में आ रही है, कलम चल रहा है माहियतुल ऐब आ रही है, कलम चल रहा है इज़ाहतुल ऐब आ रही है, कलम चल रहा है आला हजरत का खालिसुल एतिकाद आती है, कलम चलता है इम्बाउल मुस्तफा आती है। खालिसुल एतिकाद के अंदर आला हजरत से यही सवाल किया जा रहा है। मेरे इमाम फरमाते हैं, इजमा इस बात पर है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम और दीगर हजरात और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रसूलाने इज़ाम को अल्लाह ने फाफिर और कसीर इल्म गैब अता फरमाया है। और दूसरा मसला यह बयान किया, इन सारे नबी और रसूलों में अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म जिस जात को दिया है उसी को ज़माना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है। और आला हजरत ने एक हदीस नहीं, बहुत सारी हदीसें जिक्र की है। ये तो आला हजरत का कलम है। अब आला हजरत का मलफूज उठाइए, मलफूज कामिल का मुताला करें। आला हजरत फरमाते हैं, एक दिन ऐसा हुआ सरकार अलैहिस्सलाम को फजर की नमाज में देर हो गई। सहाबा इकराम कहते हैं, नकादो अन्न तराज शम्सा, ऐसा लगता था सूरज निकल जाएगा और नमाज फजर छूट जाएगी। लेकिन थोड़ी देर में सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आए और आने के बाद मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई। सहाबा इकराम से पूछा, हल तदरूना, आप जानते हैं लिमा ताखर तो फिर सला, तुम्हें मालूम है मुझे नमाज में देर क्यों हो गई? सहाबा इकराम ने अदबन अर्ज किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम। तब मेरे नबी ने जवाबन इरशाद फरमाया, अतानी रब्बी फी हसन सूरा, आज मैंने अपने रब का दीदार बेहतर अंदाज में किया था। उसके बाद कहते हैं सरकार अलैहिस्सलाम, मेरे रब ने पूछा, ए मेरे महबूब बताओ तो सही, फीमा यख्तसिबुल मलाउल आला, ये मलाए आला के फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे हैं? सरकार कहते हैं, फकुल्तु ला अदरी, मैंने कहा अल्लाह तेरे बताए बगैर तो मैं नहीं जानता। ये तर्जमा करके मैंने जवाब दे दिया है, अहले इल्म अच्छी तरह समझ गए होंगे, तेरे बताए बगैर अपने सहनो दिमाग से नहीं जानता हूँ। उसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्नल्लाह तआला वज़अ कफ़हु बैन कफ़ैया फबदतु बरता अनामिलिही बैन सदैया फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ़तु। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरी दोनों कानों के बीच में रखा तो मेरे लिए दुनिया की सारी चीजें रोशन हो गई। और रोशन ही नहीं हुई बल्कि सरकार ने हर चीज को पहचान भी लिया कि ये बरेली के गुलाम है, ये फला जगह के गुलाम है, ये फला जगह के गुलाम है। हजरत आदम को इल्म मिला, मुसम्मयात का भी इल्म मिला, अस्मा का भी इल्म मिला, तदबीर का भी इल्म मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा को वो भी अता कर दिया है। यही सवाल सरकार ताजुश्शरिया से हो रहा है। उठाइए फतावे ताजुश्शरिया की पहली जिल्द और उसके सफा 300 कुछ है, उसके अंदर आला हजरत सरकार ताजुश्शरिया ने कलम उठाया है। तो कलम उठाने के बाद वही तर्ज इख्तियार किया, वही तर्ज इख्तियार किया जो सरकार आला हजरत अपनी इन किताबों में इख्तियार कर रहे हैं। गौर फरमाइएगा, हुजूर कायदे मिल्लत ने एक बार इरशाद फरमाया था, हुजूर ताजुश्शरिया से पूछा गया, आपको आला हजरत से वरासत में क्या मिला है? तब मेरे पीर ने इरशाद फरमाया, मुझे आला हजरत से वरासत में दो चीजें मिली है, एक कुव्वते हाफिजा मिली है और दूसरे कलम की तेजी अता कर दी गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। सरकार ताजुश्शरिया ने कुरान की चंद आयतें, वक्त मुख्तसर है, कहीं आपने आयत करीमा उसमें लिखी, वअल्लमका मा लम तकुन तालम तिबयानन लिकुल्लि शै, इसी तरीके से और आयत लिखी। और उसके बाद कहा, हम अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को उलूम अव्वलीन व आखिरीन अता फरमाया। हदीस में जिक्र की, उल्लिमतु उलूमल अव्वलीन वल आखिरीन। अब आप आला हजरत को पढ़े, आला हजरत की नज़्म को पढ़े। आज मसलक का ढंढोरा पीटने वाले आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके पेट तो पल रहे हैं, सुन्नियत का क्या हाल है उनको कुछ पता ही नहीं। उनको तो सिर्फ आला हजरत के
यहाँ से तस्दीक मिल जाए यही काफी है। लेकिन यहाँ से हटते हैं तब ताजुश शरिया के मौक़िफ़ की धज्जियां उड़ाते हैं। यहाँ से हटते हैं तब उनके जुमले ये होते हैं कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गलती नहीं हो सकती है। मैंने कहा माअज़ल्लाह इस तरह के जुमले बोल रहा है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस को भी जिक्र किया। सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला रफ़ा लियद दुनिया फ़ला अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। मेरे नबी फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को अल्लाह ने मेरे लिए उठाया तो मैं दुनिया और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसको ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। उधर ताजुश शरिया भी लिखे, आला हजरत भी लिखे और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मौक़िफ़ को ताजुश शरिया ने मसलक की रोशनी में आम किया। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। एक बात और सुनिए, माशाअल्लाह 2 मिनट में चाहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान बहुत शानदार। हम लोगों को बरेलवी कहा जाता है। बोलो बरेलवी कहने पे फख्र है ना? बोलो 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 बोलो। अब अगर कोई ऐसा वैसा मुहक्किक आकर कहे कि ये बरेलवी लक़ब तो गैरों का दिया हुआ था, गैरों का दिया था, तुमने कबूल कर लिया। हमने कहा तुम्हें आला हजरत की जात जानिब लफ्ज़ बरेलवी मंसूब करते हुए बरेली शरीफ की वजह से हमने बरेली कहा। तुमने एतराज कर दिया, इस पर जवाब मातुरीदी भी है हमारे। हमें मातुरीदी भी कहा जाता है, वो भी किसी जगह का नाम है। लेकिन सुने सफ़े अव्वल के जो उलमा बैठे उनसे खास तवज्जो चाहूंगा। मेरे जुमले की तस्दीक हो तो मैं इंशाअल्लाह रहमान अपने लिए हौसला महसूस करूंगा। गौर फरमाइएगा, तुम्हें यह तो तौफीक नहीं हुई कि जब एहसान इलाही ज़हीर ने बरेलवियत लिखकर पूरी बरेलवियत पर हमला किया। आज जितने बैठे हैं सब कहते हैं मसलक आला हजरत, अपने आप को बरेलवी कहते हैं। खानका वाले हो, मदरसे वाले हो, दरसगाह वाले हो, सब के सब फख्र से कहते हैं, हम भी कहते हैं। मगर एहसान मानो तुम्हारी साख को ऐसे वक्त में अगर किसी ने बचाया था जब हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर एक मनहूस शख्स एहसान इलाही ज़हीर अल बरेलवियत लिखकर और उसका अरबी में तर्जमा करके जामिया अज़हर की लाइब्रेरी तक पहुंचा दिया गया और यह कहा गया अल इमाम अहमद रज़ा खान हुआ मुअस्सिसु अल फ़िरक़तिल जदीदिया अल्लती तुसम्मा बिल बरेलविया। एक नए फिरके का बानी है और यह कादियानी है। कादियानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का शकीक हूँ कहकर उसका सगा भाई करार दिया गया। बड़े बड़े लोगों की ज़बानें खामोश थी और यहाँ बरेलवियत पर एतराज तो नजर आ रहा था, लेकिन जवाब कैसे दी? मैं कुर्बान जाऊं अपने ताजुश शरिया की जात पर। एक किताब लिखी मिनातुन नजदिया पे जवाबिल बरेलविया, अरबी में किताब लिख के बता दिया। अबे पागलों किस भूल भुलैयों में पड़े हो? हम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के सगे भाई उसकी रविश पर नहीं है। हमारे इमाम ने तो कादियानी के रद में किताबें लिखकर हमें यह कहने के लिए जवाब फराहम कर दिया है जिसने बद मजहबों के किले ढा दिए। हिम्मत आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह एक मिनट वक्त मेरा खत्म हो गया। बहुत अच्छा। आपसे गुजारिश करूंगा अगर फितनाए इर्तिदाद से बचना है तो अपने घरों के अंदर फतावे ताजुश शरिया लेकर जी, और अगर फतावे रज़विया समझना है तब भी फतावे ताजुश शरिया लो। इसलिए कि मैं आसान अल्फाज में कह दूं, फतावे रज़विया का अक्से जमील, फतावे रज़विया की बड़ी आसान शरह और गाइड अगर कोई है दौरे हाजिर में तो उसको फतावे ताजुश शरिया कहा जाता है। अल मवाहिबुर रज़विया फिल फतावा अल हज़रिया। आए मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रिज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद।